let's talk what kind of evidences and facts are required in every paragraph to prove your case, to convince the examiner. Examiner से marks छीनने पड़ते हैं, okay? वो तो और उसको छीनने कैसे पड़ते हैं जब आप उसको satisfy कर देंगे, जब आप उसको convince कर लेंगे. पहली बात है कि try to give the numbers, okay? कि there are 7 members in G7. There are 153 members in non-aligned movement. The 3 countries that did not sign NPT, Non-Proliferation Treaty. 89 countries they signed NPT in 1968. तो 68 भी आ रहा है नंबर, कंट्रीज़ का नंबर भी आ रहा है. Secondly, names. If you say Pakistan's president, he convened a meeting with the ulamas, or you say Pakistan's prime minister visited America, better to give name. Imran Khan visited. Arif Alvi convened a meeting with the ulamas. Modi had a visit to had a meeting with Donald Trump. So therefore, right, ये छोटी-छोटी बातें हैं लेकिन इसका बड़ा ख्याल किया कीजिए. नेम लोग भूल जाते हैं. The Pakistan's first prime minister, he said this. Ayub Khan, Pakistan's president, he gave the 1962 constitution. Yes, it was given by Pakistan's president, but which president? It was Ayub or it was Skandar Mirza. So therefore you need to give the name. Pakistan's first prime minister, okay, who was he? Liaquat Ali Khan. What did he say? Names, experts. Do give if you have the expert's opinion. For example, if you are observing the corona is rising and you need to give the expert comments of doctors, okay, you should give the experts' comments. According to the doctors, according to the medical specialist, corona is not going to die at the temperature of 20 to 30 degrees centigrade. So the experts say, the medical experts say that this is the proper way to wear the gloves and to wear the mask. Now you want to give an opinion on the politics, so who is an expert on the politics? You can name Hassan Askari. If you are talking of economics, you can give the opinion of an expert, Hafiz Sheikh. So okay, because these things they add to the credibility of your information. Next is give stories and observations. अपनी stories and observations. जैसे कि उस लड़के ने देखा कि बाइकआउट मैं अक्सर सड़कों के ऊपर देखता हूँ. आप ये स्टोरीज पाकिस्तान की पावर्टी, आपने बलूचिस्तान विज़िट किया है, उसकी पावर्टी डिफरेंट है. आपने सिंध को विज़िट किया है, उसकी पावर्टी आपने देखा डिफरेंट है. आपने साउथ पंजाब को विज़िट किया, आपने देखा उसकी पावर्टी डिफरेंट है. आपने पंजाब लाहौर की पावर्टी को देखा, आपने इसकी पावर्टी डिफरेंट है. आप अमेरिका गए, आपने अमेरिका की पावर्टी को देखा, उसकी पावर्टी डिफरेंट है. सो यू हैव डिफरेंट level or different kinds of poverty, right, which you observe yourself. Again, I give you an example. Richard Nixon, again he wrote a book, and in that book he said that being President of America, I visited 77 countries of the world.
देखिए किताब से भी आपको पढ़ी है, उसके भी नंबर मिल रहे हैं, राइटर का आप नाम ले रहे हैं, उसके भी नंबर मिल रहे हैं। और वो ये क्या कह रहा है कि आई विजिटेड अ यूनिक काइंड ऑफ पावर्टी in the subcontinent. I saw for the first time the naked children running in the mid of the streets and roads with protuberant bellies, sunken eyes and emaciated looks. ये sunken eyes, emaciated looks और protuberant फैली हुई पेट ये इंडिकेट करती है मैल नरिशमेंट को। और कहते हैं मैंने नंगे बच्चे पहली दफ़ा देखे। तो अब ये उसकी ऑब्जर्वेशन है, उसने पावर्टी और भी दुनिया में कई जगह पे देखी थी, ऐसी पावर्टी कहीं नहीं देखी। तो ये एक ऑब्जर्वेशन है उसकी जो उसने किताब में लिख दिया। तो इस तरह आप ये स्टोरीज़, आपने कोई चीज़ क्या देखी है, आपने टेररिज्म के हवाले से यू विजिटेड नॉर्दर्न एरियाज, द ट्राइबल एरियाज ऑफ पाकिस्तान एंड डिड यू सी, हैव यू इंटरव्यूड द पीपल ऑफ दोज एरियाज, have you seen the schools which were destroyed by the Taliban, have you talked to the women, how do they feel, are they terrorists or they are just the scapegoats, or they are not the terrorists, they are innocents but they have lost everything, schools, infrastructure, colleges, buildings, homes. So stories बहुत ज़्यादा नंबर आपको देती हैं, पर्सनल स्टोरीज, क्योंकि ये किसी किताब में नहीं लिखी होती, ये कोई कॉपी नहीं कर सकता, ये कोई शेयर नहीं कर सकता। अच्छा जी, नेक्स्ट हो गया कोटेशन। ठीक है जी, कोई कोटेशन आपको उससे रेलेवेंट याद है तो वो आप उससे लिखें। मिसाल के तौर पे अयूब खान, he writes in his book, उसने किताब लिखी थी 66 में, फ्रेंड्स नॉट मास्टर्स, और उसमें वो कहता है कि आई डिड नॉट टेक दिस सीट माई सेल्फ, आई वॉज रिक्वेस्टेड forcibly by the politicians time and again to take over the country and save it. Now these are his words. So the words are to be written in inverted commas. Okay? He said this and this. Next, documentary. So what you are trying to find the facts, stats and evidences by writing numbers, names, opinion of the experts or specialists, by giving your personal stories, quotations, okay, documentary, you watch documentary and you are giving a reference, okay. For example, you say the Taliban, they have their own schools and over there they brainwash the children, so you can talk of the documentary which was produced by Oberoi, Sherwin Oberoi. You can say that, look how this happens. Again, Oberoi, she produced a video regarding the violence on women in Pakistan. So you can give the reference that she had talked of this thing. Okay, you can talk of a book. Again, here you can talk of a book. You can talk of that how women are treated by the feudals, by talking of the Tamina, the book My Feudal Lord. Okay, then in documentaries, what you can teach, you can give the you can give the hint of a speech. Okay, you can talk about the law, you can talk about the technicalities, you can talk about the books, okay, and you can तो डॉक्यूमेंट्री में आप पॉलिसीज़ पाकिस्तान की पॉलिसीज़, मतलब कि लेटेस्ट एजुकेशन पॉलिसी क्या है पाकिस्तान की, लेटेस्ट इकोनॉमिक पॉलिसी क्या है, इमरान खान की स्पीच में उसने क्या कहा, एंड सो ऑन.
So when you write down, अब देखिए आपने कहा था कि पाकिस्तान दिस इकोनॉमी इज़ मीडियम साइज. अब आप जब यहाँ पे ये लिखेंगे पाकिस्तान इकोनॉमी इज़ $320 billion. Pakistan's growth rate is very low. Okay ji, it was as compared to previous years. No, this is generalized statement. Last year it was 5.5, this year it is 3.3. Pakistan's exports, they are low and imports are high. No high, low. Our exports, right, they are 42 exports and 24, 52. 52 are our imports and 24 are our exports. Pakistan has huge debt, no huge debt. We have $1.7 billion debt. Literacy rate, we have very low literacy rate. No, we have 58.7. Pakistan pays very low budget on education. What is low? Write down 2.8% of the GDP. और नॉर्मल कितना होना चाहिए? 4 to 5%. तो इस तरह से ये फिगर जो है ना ये देनी बड़ी ज़रूरी होती है. इम्तिहान में आगे चलते हैं और करंट अफेयर्स में कुछ और चीज़ें बड़ी मैटर करती हैं. ग्राफ्स और टेबल्स. ग्राफ और टेबल ज़रूर बनाएं, जहाँ पे भी आप बना सकते हैं. मिसाल के तौर पे पाकिस्तान ग्रोथ रेट वाज 7, ओके, इन ईयर दिस इट वाज 6.5, इन ईयर दिस it was 5.8, 1918, it was now 2020 3.3. और फ्यूचर की प्रेडिक्शन क्या है? फ्यूचर की प्रेडिक्शन 2021 E mean estimated, okay, it is going to be negative 1.5. So this is a graph, okay. Similarly tables में जिसमें आप कंपैरिजन कर सकते हैं डिफरेंट चीज़ों का. अच्छा, तो ये टेबल्स और ग्राफ्स ये ज़रूर बनाएं. बच्चे बहुत कम बनाते हैं. और नक्शा बनाएं तो प्रॉपर बनाएं, वरना नक्शा भी वो सही नहीं बनाते तो वो नंबर नहीं मिलते हैं. नेक्स्ट, स्टैटिस्टिक्स के लिए ज़्यादा नंबर लेने के लिए राइट आप ग्लोबल इंडेक्स ज़रूर पढ़ा करें और वो लेटेस्ट देखा करें. ग्लोबल इंडेक्स क्या है लेटेस्ट? ग्लोबल इंडेक्स जैसे वुमेन एम्पावरमेंट ईयरली ग्लोबल इंडेक्स, लिटरेसी ग्लोबल लिटरेसी रेट एनुअल बेसिस पे आता है, ग्लोबल डेमोक्रेसी इंडेक्स, ग्लोबल वायलेंस इंडेक्स, ग्लोबल इकोनॉमिक इंडेक्स, ग्लोबल ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स, ग्लोबल बिजनेस कंपैटिटिवनेस इंडेक्स. उसके बाद आप करप्शन इंडेक्स, ग्लोबल करप्शन इंडेक्स, ग्लोबल HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ग्लोबल पॉपुलेशन इंडेक्स. अब देखिए मैंने अब आपके लिए ये इंडेक्सेस को कैसे वो किया है. ओके, देखिए वी आर पर कैपिटा इनकम, हर बंदे के कितना कमाता है. ओके, 2019 ये सारी 2019 पाकिस्तान इज़ 157 इन पर कैपिटा इनकम. हमारी पर कैपिटा इनकम कितनी है? $1246 पर एनम. करप्शन में वी आर 181 करप्शन. We are 110th in global competitive index. We are 131 in ease of doing business. We are 152 in human development index. We are 144th in global literacy index. We are 5th in global population. We are 108th in ease of doing business. तो ये इंडेक्सेस हैं.
और इससे आप कितना अच्छा इम्पैक्ट दे सकते हैं कि एनालाइज करने के लिए। देखिए यहाँ पे अब इनकी बेसिस पे आप एनालिसिस करते हो, ओके, कि हमारा पर कैपिटा इनकम ये है, ओके, और चाइना का पर कैपिटा इनकम $20,000 है ना। अब इसको कंपेयर कीजिए, हमारा क्यों कम है, उसका क्यों बढ़ रहा है। अमेरिका का 65,000 क्यों है, थिंक ऑन इट, गिव द कमेंट्री, एनालाइज करें सिचुएशन को, ओके। इसी तरह हमारा लिटरेसी रेट अगर 58 है, ओके, तो हमारे साउथ ईस्ट एशिया में तकरीबन सबका है, जो सारे भूटान, नेपाल, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, इन सब के लिटरेसी रेट हमसे क्यों ज़्यादा है। आप उस ज़्यादा और इसमें कंपेयर कीजिए। तो ये कंपेयर करना और उसकी बेस पे एनालाइज करना, सजेशन करना, राइट, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, रिलायबल सोर्सेज को हमेशा कोट कीजिए। ये इसके लिए रिलायबल सोर्सेज, इसके लिए रिलायबल सोर्सेज, ये स्टैट्स के रिलायबल सोर्सेज को कोट कीजिए। मसलन अगर आप विकिपीडिया को कोट करेंगे आपको नंबर नहीं मिलेंगे, लेकिन रिलायबल सोर्स को कोट करेंगे आपको नंबर मिलेंगे। अब मिसाल के तौर पे वर्ल्ड बैंक कहता है पाकिस्तान की पावर्टी इज़ 39%, ओके। नाउ वर्ल्ड बैंक की पावर्टी इज़ रिलायबल, यूनाइटेड नेशन रिलायबल, उसके बाद BBC रिलायबल, इकोनॉमिस्ट रिलायबल, फॉरेन पॉलिसी मैगज़ीन रिलायबल, फॉरेन अफेयर्स मैगज़ीन रिलायबल, टाइम्स रिलायबल, जज़ीरा, अल जज़ीरा रिलायबल। इसलिए उर्दू अखबार की सोर्स को मत रेफ़र कीजिए, डॉन को रेफ़र कीजिए, रिलायबल सोर्स ऑफ। कई जगहों पे आपको ये डाटा में आपको तज़ाद नज़र आएगा। मसलन पाकिस्तान का 1246 है, किसी जगह पे आपको 1348 भी मिलेगा। अब आपने सोर्स देखनी है। अगर तो ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने ये दिया है और ये वर्ल्ड बैंक ने दिया है, तो दोनों रिलायबल सोर्सेज हैं। आप लिख दें बाय गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, आप लिख दें बाय वर्ल्ड बैंक, क्योंकि तजाद आ सकता है। फॉरेन पॉलिसी में, पावर्टी में भी ये देखिए, ये वर्ल्ड बैंक कहता है 39 है, आपकी गवर्नमेंट कहती है नहीं 24 है, तजाद आ गया ना। लेकिन दोनों सोर्सेज रिलायबल हैं, इसलिए अगर आप 24% लिख रहे हैं, लिख दीजिए अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान, अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट। लेकिन अगर आप विकीपीडिया और इस तरह की घसी पिटी या उर्दू अखबार लिखेंगे कि उसमें जी इतना लिखा हुआ है, उसकी वो वी आर नॉट गोइंग टू फॉलो दैम।